Hello everyone, I'm AP Singh, Joint Director MADZ, and in this part of the class, you will have the classes of GK and current affairs. Before we move into this area, I hope every one of you is doing well in this time of crisis. You are preparing well, you're trying to utilize your time in a productive manner. Now, when it comes to the questions in the examination you people are going to write, so far the GK and current affairs questions are considered. You must have seen the questions are straightforward, direct, fact oriented question, and to cover those information from huge amount of informations available outside becomes a very difficult task. And that's why what happens, sometimes the student keep on studying whatever they come across and they think of memorizing every single information. It becomes very difficult. Most importantly, remember, we need to invest the time in such a manner so that it is having very high productivity when it comes to examination. और ये तब पॉसिबल है जब पहले आपको ये समझ में आए कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं. I hope I'm trying to convey the message and you are getting that message. Is that's very simple, that when it comes to GK and current affairs, the syllabus, there is no definite syllabus. There is no limit, there is no frontier, there is no boundary. Everything, whatever is available outside, becomes a part of the GK and current affairs. Especially, we have two type of information. One, we call it as a GK, and second, we call it as a current affairs. Now, they are not very detached areas. They are not completely separated from each other. They are linked. And remember what happens there. One information today may have been in news. Tomorrow, it may become part of the GK because it becomes it remains an important information. And that's why, remember, when you are preparing, we need to blend those two categories together. हमें इन दोनों को साथ में लेकर के चलने की जरूरत पड़ेगी. Now, when we will move into this areas, we will try and understand that. पहले कोशिश करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं, I have already told you there is no particular syllabus for the GK and current affairs. In other areas, when we cover history, geography, polity, इकोनॉमी, अदर एरियाज, हमारे पास कुछ गाइडलाइंस अवेलेबल हैं विद रिस्पेक्ट टू द मेजर टॉपिक्स. बट व्हेन वी से द जीके एंड करंट अफेयर्स, एवरीथिंग बिकम पार्ट ऑफ दैट. इवन जीके एंड करंट अफेयर्स may include history also, may include geography also, may include polity also, every of those areas, because when we divide them into the certain specific branches, these are the specific areas, और एक साथ रखेंगे तो सबका सब यहाँ पर आ गया है. फिर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसे हम जनरली जीके एंड करंट अफेयर्स के पार्ट में रखते हैं. So what we'll try and first of all frame a kind of a periphery within which we shall be keeping our focus, या हम एक तरीके से कुछ एक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का सिलेबस जनरली होता है. सो फर्स्ट इफ वी सी जो क्वेश्चंस आए हैं आज तक इस एग्जामिनेशन में, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो व्हाट शैल बी काइंड ऑफ अ सिलेबस फॉर द जीके एंड करंट अफेयर्स. किस तरीके का सिलेबस जीके और करंट अफेयर्स का होना चाहिए. तो उसमें हम पहले तो ये देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स ओवर देयर. जब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक तरीके के तीन तरीके के क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन में फ्रॉम दिस एरिया. नंबर वन वी से इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मींस अ जीके क्वेश्चन. सो इट्स अ जीके क्वेश्चन. तो एक तो जीके क्वेश्चंस हो गए हैं. When we see the GK question, it means these are the questions from the informations which were already available in the past. तो हम उसको बोलते हैं GK question. और दूसरा कैसा है, second we call it as a current question, current information based question, current information based question, current information based question. लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है, तरीके का क्वेश्चन है, वो इसकी ब्लेंडिंग है. So third type of question is the blend of those two. So what we see over here, it's a kind of a GK questions, but these GK questions based on current information, based on current information. हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पहले से अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ये भी नई न्यूज में आई है, लेकिन जो नया न्यूज में है उससे पहले से अवेलेबल इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो वो तीसरा तरीका हो गया, उसको हम बोलते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन have been asked in the examination, but they have been guided by the information which were in news. So current affairs, contemporary information, they have guided the question to be asked from the previous information. अभी example बता रहा हूँ. And what do you mean by this example? अगर हम देखते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया कि यूएन का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, या एग्जांपल के लिए वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए तो हम एक बोल रहे हैं कि वो वहां पर था, उस तरीके से क्वेश्चन आया. पर एक दूसरी वजह से भी क्वेश्चन आ सकता है. कैसे
क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट, तो इस बार यूएन का क्वेश्चन आने का मतलब क्या है, ये है तो क्वेश्चन जीके का, लेकिन क्यों गाइड हो रहा है, इसलिए गाइड हो रहा है क्योंकि ये बेस्ड ऑन क्या है, करंट इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसी यूनाइटेड नेशन का क्वेश्चन जब हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 75th सेशन है, और इस 75th सेशन के लिए किसे प्रेसिडेंट चुना गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट for the 75th session of the United Nations General Assembly। जो वो क्वेश्चन आया तो इसका अंदर वो कैसा क्वेश्चन हो गया, प्योरली करंट का ही नेचर था, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन पहले अवेलेबल नहीं थी। ये इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है, लेकिन पूछी क्यों जा रही है, पूछी इसलिए जा रही है क्योंकि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अब न्यूज में चल रही है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखते हैं अभी बाबरी मस्जिद डिमोलिशन 6 दिसंबर 1992 दोबारा न्यूज में आया, तो 6 दिसंबर 1992 इस लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं, पर शायद वो 6 दिसंबर इंपॉर्टेंट हो गया। 6 दिसंबर ऑल्सो रिमेंबर एज अ वन डेट व्हेन वी ऑब्जर्व द डेथ एनिवर्सरी ऑफ बी आर आंबेडकर, Mahapariନିର୍van Divas. So the question may come from there. The question may come in the examination from Chaitya Bhumi, the resting place of B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar is also known as the father of the Constitution of India, chief architect of the Constitution of India, principally because he was the head of the drafting committee which was given the responsibility to draft the Constitution of India. तो ये क्या हो गया, हो सकता है वो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अर्ली डेज से क्वेश्चन आ जाए। द ओरिजिनल ड्राफ्ट of the Constitution of India was prepared by B.N. Rao. हो सकता है B.N. Rao का क्वेश्चन आ जाए, जो बाद में also became the legal advisor, and B.N. Rao also later on served in the United Nations representing India, and as well as he is also the one who was there as a first Indian to represent India as a president of the United Nations Security Council when India became the member of United Nations Security Council. So what we talk about, बहुत सारे फेसेट हो जाते हैं, तो ये इनको हम क्या बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन को जब पढ़ेंगे हम तो हम कोशिश करेंगे एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ लिंक करते चले जाएं, क्योंकि याद रखना है तो पढ़ना ही काफी नहीं, पढ़ने के साथ साथ थोड़ा रिटेंशन भी होता चला जाए। तो अगर पढ़ने के साथ रिटेंशन हो रहा है तो शायद वो तब होता है जब एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ लिंक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में याद रखना, जब हम ये जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में देखते हैं तो इस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन वो रिकॉल बेस्ड ज्यादा है। अगर हमें याद आ रहा है, हमने कहीं देखा हुआ है, हमने कहीं पढ़ा हुआ है, 4 ऑप्शन देखते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दोस 4 ऑप्शंस वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी टू मेमोराइज एवरीथिंग, but still we may be able to recall in the examination if while preparing we have studied properly. So that's remember first of all what we would do कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो टॉपिक्स में टॉपिक्स को लिंक करके पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं यहाँ कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है। दूसरी बात, ये आपकी इंटरटेनमेंट या आजकल न्यूज में क्या चल रहा है उससे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बने, ये जरूरी नहीं। एग्जामिनेशन के क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से बनते हैं, अलग तरीके की इंफॉर्मेशन काम की है। अब इतने सालों से हम देख रहे हैं कि अगर हम हर दिन के न्यूज़पेपर को देखें तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती है, बट क्या सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए अगर हम सारी इतने सालों की इंफॉर्मेशन पढ़ना बैठे तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और दूसरी बात, क्या वो एग्जामिनेशन में ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के फॉर्म में आती है? नहीं। तो शायद अगर एक दिन का न्यूज़पेपर भी देखेंगे तो फ्रॉम वन डेज न्यूज़पेपर इफ यू सी मे बी 10, 15, 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बी देयर, एंड आउट ऑफ दोस 10, 15, 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अगर हम जमा करते जाएं तो थ्रू आउट द ईयर दे बिकम ह्यूज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस देयर, एंड प्लस स्टिल रिमेंबर उसके अलावा बहुत सारी दूसरी इंफॉर्मेशन है जिसे अभी भी और पढ़ना है। द इंफॉर्मेशन व्हिच हैव बीन देयर इन न्यूज़ इन द पास्ट, क्यों? क्योंकि अब वो शायद उसमें इनकलकेट हो चुकी हैं एंड दे हैव बिकम द पार्ट ऑफ द जीके क्वेश्चंस। सो फॉर एग्जांपल के लिए इफ यू सी ओलंपिक 2020 वो करंट का हो सकता है, लेकिन व्हाट अबाउट ओलंपिक 2016, व्हाट अबाउट द ओलंपिक्स 2012, व्हाट अबाउट द इंडिया's परफॉर्मेंस इन द ओलंपिक्स सो फार, number of earlier olympics are considered, and what about the olympics itself for that? So when we say the olympic, then olympics may be from the GK area, but the Olympics 2020 may be from the current affair. The mix of those two become the GK question based on the contemporary information. तो आपका ये जो portion है, if this is taken as a guide, then the preparation becomes relatively better preparation. We will understand with the help of the certain topics also. जब हम कवर करेंगे तो टॉपिक्स में हम समझते जाएंगे, पर उसके पहले एक तरीके से देखते हैं कि क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस एरिया से आते हैं। सो व्हाट इज अ काइंड ऑफ अ सिलेबस वी हैव मोर देन, सो अ काइंड ऑफ द सिलेबस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, दिस इज नॉट हैविंग एग्जॉस्टिव कवरेज, पर फिर भी ब्रॉडर टॉपिक्स क्या होते हैं, वैसे तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज नेशनल जीके एंड करंट अफेयर्स एंड सेकंड इज इंटरनेशनल जीके एंड करंट अफेयर्स। 2 तरीके से हो सकते हैं, वन वुड बी नेशनल एंड सेकंड
would be international. बहुत शुरू में बता दूं, while I'll be writing on board, I keep on saying every of those words, I keep on repeating. साथ ही साथ प्लीज एक और चीज याद रखना, कई बार मैं बोर्ड पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा बोल रहा हूं, आप उसे सुन रहे हैं, आप अपने नोट्स में प्रॉपर नोट्स लिखते हुए जा सकते हैं, आप लिख सकते हैं उसको। दूसरी बात याद रखना, डू नॉट फोकस ऑन ट्रिवियल थिंग्स, डू नॉट फोकस ऑन ट्रिवियल थिंग्स, अननेसेसरी की चीजों पे ध्यान नहीं देना है। जैसे एग्जांपल अभी मैं लिख रहा हूं, ब्लैक लिखा और यहां तक करके के नहीं लिखा आगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं पता है या, लेकिन हम जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वहां पर कम टाइम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर करने की जरूरत है, इसलिए कोशिश करना थोड़ा काम की चीजों पे फोकस करना, जो सिग्निफिकेंट है उस पर, अननेसेसरी स्पेलिंग्स, अननेसेसरी की चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। सो दिस इज व्हाट व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस हियर, प्रिंसिपली नेशनल एंड इंटरनेशनल, टू टाइप ऑफ एरियाज। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा वेग हो गया, तो क्या हो सकता है, हम इसको इस तरीके से कुछ ऐसे कवरेज करेंगे। नंबर वन, एक तो हम देखेंगे मेन क्वेश्चन जो आते हैं एग्जामिनेशन में वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। सो वन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर इन्हीं के दायरे में हम करंट अफेयर्स को भी देखते हुए चलेंगे। जैसे अभी हमने देखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ दिस कोविड क्राइसिस इज वेरी मच इन न्यूज। अब वही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में चल रहा है, तो किस वजह से न्यूज में चल रहा है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले से जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जैसे हमने देखा बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, IMF इज इन न्यूज, वर्ल्ड बैंक इज इन न्यूज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन न्यूज, तो वो फिर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान इज इन न्यूज, फिर वो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो गया दैट वे। एग्जाम्पल के लिए कुलभूषण जाधव को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यूज में था, तो वो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनाइटेड नेशन के 75 साल पूरे हुए हैं, 75 ईयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इज टेकिंग प्लेस। यूनाइटेड नेशन व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड on 24th of October 1945 effectively, that is why it is observed as a United Nation Day। तो वो 75 years के ऑब्जर्वेशन के सेलिब्रेशन चल रहे हैं, तो उसको लेके शायद हो सकता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए। सो वन इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये सिर्फ इस एग्जामिनेशन में नहीं, बाकी के दूसरे एग्जामिनेशंस में आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। सो वन इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर टू इज इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, international news and other issues, international news, international issues और international affairs। अब जैसे internationally हम देख रहे हैं बेलारूस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंड बेलारूस व्हिच इज नाउअडेज कंसीडर्ड बाय द मेनी पीपल इन द यूरोप एज अ लास्ट डिक्टेटरशिप व्हिच इज रिमेनिंग इन यूरोप। या सिंपली वी सी बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में कवरेज मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शन व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन यूएस। अब वो जो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन बन के आते हैं, वो जो कहानियां न्यूज़पेपर में रहती हैं वो एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के लिए कुछ अलग इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत है, या उसको लिंक करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शन न्यूज में इट मे बी लिंक्ड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन। अभी जैसे हमने देखा रशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के काफी हलचल मची, और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है, और ऐसा लोगों को लग रहा है आफ्टर दिस अमेंडमेंट पुतिन मे रिमेन इन पावर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया टिल 2036। सो क्या है वो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये हम बोलते हैं जो करंट में इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज में चल रहा है। So that's one international news issues affairs, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। Along with this कुछ क्वेश्चंस आते हैं from the specific issues with respect to news, example environment in news। तो हम कवर करेंगे इस तरीके से कुछ एरियाज जो होंगे वो environment in news। environment किस चीज के क्या न्यूज में चल रहा है, environment से रिलेटेड, polity in news, पॉलिटी इन न्यूज। अभी पॉलिटी इन न्यूज क्या है, इन्वायरमेंट इन न्यूज क्या है, इसके अलावा फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन न्यूज। दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन न्यूज। इसमें मेनली जो हम देखते हैं वो 3 एरियाज आर मोर इंपॉर्टेंट। One is with respect to defense, second is with respect to atomic energy, and third is with respect to space. Defense, atomic energy and space. Defense, atomic energy and space. अभी हमने देखा है रशिया स्पेशली जार बॉम्ब को लेकर के न्यूज में था, उसने एक वीडियो रिलीज किया है ऑफ अक्टूबर 1961। एक तरीके से 75 इयर्स ऑफ न्यूक्लियर इंडस्ट्री को एक मनाने के लिए उन्होंने इसका एक वीडियो रिलीज किया जो पुराना एक उन्होंने एक्सप्लोजन किया था, दैट वाज रिमेंबर हाइड्रोजन बॉम्ब। सो अगेन क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू फिजन और विद रिस्पेक्ट टू फ्यूजन, वहां हो सकते तो एक बेसिक आइडिया और उससे रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो है। तो मेन क्वेश्चन आ जाते हैं डिफेंस से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, या
फिर स्पेस से रिलेटेड व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन न्यूज, एनवायरमेंट इन न्यूज, पॉलिटी इन न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन न्यूज। इसके अलावा आप जो देखते हैं वन एरिया फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन इज स्पोर्ट्स इन न्यूज। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या है, सो व्हाट इज स्पोर्ट्स इन न्यूज। अब ये जो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं इसमें मोस्टली सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है ग्रैंड स्लैम, टेनिस ग्रैंड स्लैम्स। एग्जांपल के लिए इसमें 4 इंपॉर्टेंट जो स्लैम्स हैं आपके, वन इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड इज फ्रेंच ओपन, एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। तो ये जो 4 हैं ये इनसे ग्रैंड स्लैम, बाकी के दूसरे टेनिस टूर्नामेंट से कभी कभी विनर के क्वेश्चन आते हैं बट ज्यादातर यहाँ पर। सो वन इज दिस ग्रैंड स्लैम। दूसरा जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं वो थोड़ा ओलंपिक्स से आ जाते हैं। तो अभी हमने देखा है ओलंपिक्स 2020 क्या है, पोस्टपोनिंग एटसेट्रा, तो वो सारी चीजें हम एक बार कवर करेंगे उसको ओलंपिक्स से क्वेश्चन। नंबर 3 इज द क्वेश्चन व्हिच कम्स इज फ्रॉम फुटबॉल, सो दिस इज फुटबॉल रिलेटेड क्वेश्चन। एंड नंबर 4 इज विद रिस्पेक्ट टू क्रिकेट। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है ओलंपिक्स एंड एज वेल एज अ ग्रैंड स्लैम, सो फॉर द स्पोर्ट्स इज कंसीडर्ड, बट क्रिकेट और बाकी के फिर मिसलिनियस। तो हम स्पोर्ट्स में इस तरीके से कुछ वी विल ट्राई एंड हैव अ ब्लेंड ऑफ बोथ, कुछ पीपीटीज, कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको थोड़ा कम टाइम में ज्यादा मिल जाए उसको भी यूज कर लूंगा, और साथ ही साथ वी विल ट्राई एंड कवर सम ऑफ द एरियाज व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेयर द चांसेस ऑफ हैविंग क्वेश्चन इज वेरी हाई, वेरी सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे इंटरनेशनल में, उसमें इंडिया का भी कोई न्यूज है तो नेशनल इंटरनेशनल का ब्लेंड भी हो सकता है। जैसे रिसेंटली इंडिया हैज गॉट इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन अभी आएंगे धीरे धीरे। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल अलोंग विद द सर्टेन अदर मेंबर्स, कुछ और मेंबर्स भी इलेक्ट हुए हैं तो उनसे क्वेश्चन हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल से क्वेश्चन हो गया, तो ऐसे वो इंडिया का इंटरनेशनल हो सकता है। तो उसको हम कभी कभी बोलते हैं इट इज फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो और इट इज फ्रॉम द मल्टीलैटरल इंटरनेशनल न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो वन इज स्पोर्ट्स एंड न्यूज। तो एक तो हो गया स्पोर्ट्स एंड न्यूज। इसके अलावा व्हेन वी सी अगला एरिया जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं वो फिर हम इसको हम अलग से देखेंगे, दैट विल बी द नेशनल न्यूज। एक नेशनल न्यूज, बाकी की कुछ जो इश्यूज हैं वो नेशनल न्यूज से। अब इसमें जब हम कवर कर रहे होंगे तो कुछ जो छोटे कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट, ये बता रहा हूं कि हमने जनरली किन इंफॉर्मेशंस को कवर करना है, व्हाट आर द वेरियस इंफॉर्मेशन, वो हम ब्लेंड लेकर के चलेंगे इज मेजर टॉपिक एंड देन वी विल बी मेकिंग इट इज अ काइंड ऑफ अ माइनर टॉपिक्स आल्सो। सो वन इज नेशनल न्यूज रिलेटेड क्वेश्चन। बाकी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जनरली हम इसे 2 ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज नेशनल एंड सेकंड इज इंटरनेशनल। जैसे एग्जांपल के लिए भी बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज या फिर मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज या फिर वी टॉक अबाउट दिस नोबेल प्राइज एटसेट्रा, ये हो गए इंटरनेशनल। अगर हम बात कर रहे हैं भारत रत्न, हम बात कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, तो वो नेशनल हो गए। हम उसी को अलग तरीके से भी ले सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड न्यूज में भी कर दिया या फिर हमने उसको अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कर दिया, तो जनरली इसे हम पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कमिटी एंड कमीशंस। कमिटी एंड कमीशंस मींस कौन कौन सी कमिटी किस किस पर्पस के लिए अपॉइंट की गई थी, इट मींस दे आर रिकमेंडिंग सर्टेन थिंग्स, या कोई पर्टिकुलर एरिया पर रिकमेंडेशन देने के लिए कोई कमिटी अपॉइंट की गई, तो एक उससे क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द कमिटी एंड कमीशन। एक क्वेश्चन आता है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स एंड देयर प्लेसेस, जहां पर वो हैं वहां से जीके एंड करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आते हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड देयर प्लेसेस। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द पर्सन्स इन न्यूज, वन इज पर्सन्स इन न्यूज, और फिर आता है एक प्लेसेस इन न्यूज, कुछ जो जगह न्यूज में चल रही हैं तो वो पर्सन्स इन न्यूज और दूसरा प्लेसेस इन न्यूज, पर्सन्स इन न्यूज एंड प्लेसेस इन न्यूज। साथ ही साथ क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द जीके पार्ट दैट इज कॉल्ड द प्लेसेस एंड देयर सॉब्रिके, प्लेसेस एंड देयर सॉब्रिके, प्लेसेस इन देयर सॉब्रिके, दैट उसको बोलते हैं उपनाम। क्या है? प्लेसेस इन देयर सॉब्रिकेज। इसी तरीके से हैं पर्सन्स एंड देयर सॉब्रिकेज, पर्सन्स एंड देयर सॉब्रिकेज। तो ये क्या है? सॉब्रिके मींस उपनाम। तो ये जैसे एग्जांपल के लिए वीसी हम कहीं पढ़ रहे हैं और वहीं पे हम लिखते हैं लाइक पेरिस इज अ सिटी ऑफ लाइट्स, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। इस तरीके से कुछ वो जीके की भी क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। सो वन इज प्लेसेस एंड देयर सॉब्रिके एंड एज वेल एज अ पर्सन्स एंड देयर सॉब्रिके। अलोंग विद दिस इज क्वेश्चन आता है डेज को लेकर के, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंसेस,
इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल ऑब्जर्वेंसेस, नेशनल ऑब्जर्वेंसेस, इंटरनेशनल और नेशनल ऑब्जर्वेंसेस। अब जैसे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस हो गया, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है, वो नेशनल ऑब्जर्वेंस हो गया, ये नेशनल वीमेंस डे भी है और इंटरनेशनल वीमेंस डे भी है। इंटरनेशनल वीमेंस डे वेरी पॉपुलर 8th ऑफ मार्च, नेशनल वीमेंस डे कई बार नहीं पता रहता है लोगों को, दैट इज 13th ऑफ फरवरी इज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल वीमेंस डे। सो व्हाट हैपेंस ओवर देयर, वो क्या है, ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंसेस। जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में फ्रॉम द वर्ल्ड अर्थ डे, या वर्ल्ड वाटर डे, या वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, सो दीज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। या फिर अर्थ आर इज ऑब्जर्व्ड फॉर व्हाट पर्पसेस, कब बनाया जाता है या किस दिन था या इसका थीम क्या था, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑब्जर्वेंसेस, ये डेज से रिलेटेड हो सकते हैं, ये ईयर से रिलेटेड हो सकते हैं, ये डिकेड से रिलेटेड हो सकते हैं, व्हाटएवर इट इज एटसेट्रा। इस तरीके के जो सिग्निफिकेंट हैं, जो न्यूज में चल रहे थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। अलॉन्ग विद दिस एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है एग्जामिनेशन में, उसको हम बोलते हैं नेशनल सिंबल्स। ये नेशनल सिंबल से एक क्वेश्चन यहां से कई सारे एग्जामिनेशन में आ जाता है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, बाकी के दूसरे नेशनल जो सिंबल्स हैं, जैसे नेशनल एनिमल्स में नेशनल एवियन एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो एक वो नेशनल सिंबल्स रिलेटेड वन जीके क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दोस एरियाज आल्सो। सो वन सिग्निफिकेंट एरिया, हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी छोटे छोटे टॉपिक सारे कवर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट विल डू उधर। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, वन इज पॉपुलेशन सेंसस। सो वन इज पॉपुलेशन सेंसस। फिर से याद रखना, देखो क्या है, टॉपिक्स यहीं कहीं कवर हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 क्वेश्चन हो गया, कहीं सेंसस से आ गया। अभी न्यूज में चल रहा था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो वो सिटीजनशिप रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 न्यूज में था, तो वो CAA का क्वेश्चन हो गया। या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस NRC न्यूज में था, तो फिर से वो सिटीजंस का हो गया। और फिर सिटीजंस का मतलब हो सकता है फिर सेंसस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो वो न्यूज में ही है, उसी से कनेक्टेड जीके एंड एज वेल एज करंट अफेयर्स। जो न्यूज में है वो नया, और जो इससे रिलेटेड पुरानी इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो एक हमने टॉपिक डिवाइड किया कि एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, दैट इज पॉपुलेशन सेंसस रिलेटेड क्वेश्चन। सो वन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस एरिया आल्सो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स आल्सो। सो वन इज द एरिया विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट स्कीम्स। सो वन इज गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स जो कुछ मेजर स्कीम्स हैं उनको हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, A Kalia scheme has recently been launched by which of the Kalia scheme किस स्टेट ने लॉन्च की थी, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। या पोषण अभियान किससे रिलेटेड है, सो दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कीप कमिंग। सो कुछ नेशनल लेवल पे, कुछ स्टेट की भी कुछ स्कीम्स कभी कभी एग्जामिनेशन में थोड़ी ज्यादा आ जाती हैं, अगर वो पॉपुलर ज्यादा है, सो इन दैट वे द क्वेश्चन में कम इन द एग्जामिनेशन। अलॉन्ग विद दिस वन क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट अमंग। अगर ऐसा कुछ न्यूज में था कि फर्स्ट अमंग इंडिविजुअल्स, अभी हमने देखा with respect to say for example डिफेंस में कुछ फर्स्ट है, तो फर्स्ट अमंग दोज, या एग्जांपल के लिए अवार्ड रिसिपिएंट में कोई फर्स्ट हो गया, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फर्स्ट अमंग दोज पीपल। कभी कभी पुराना भी आ जाता है, जैसे अभी हमने देखा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट अब फॉर द 75th सेशन, नाउ द फर्स्ट वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज विजय लक्ष्मी पंडित एंड शी वाज फ्रॉम इंडिया। सो फर्स्ट Indian, only Indian, and the first ever woman to become the president of the General Assembly was Vijay Lakshmi Pandit, sister of Jawaharlal Nehru. So sometimes these are the kind of a GK questions they come in the examination, right? Apart from this, कुछ important lakes etc. इनके क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे important lakes हैं या cities हैं या फिर कोई दूसरे फर्दर प्लेसेस वगैरह हैं, सो दिस क्वेश्चन आल्सो कम इन द एग्जामिनेशन समटाइम्स। जैसे एग्जांपल के लिए बेयर लेक का क्वेश्चन आ गया, या फिर ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका का क्वेश्चन आ गया, या फिर हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट लेक्स फ्रॉम अफ्रीका का क्वेश्चन आ गया, या इंपॉर्टेंट माउंटेन्स प्लेसेस यहाँ के क्वेश्चन आ गए। सो दीज आर द वन। कभी कभी एक और एरिया है जहां से क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जामिनेशन में, दैट इज वन इज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन एरिया इज दिस, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये नेशनल पार्क कहां पर है, जैसे क्वेश्चन आ गया फ्लोटिंग आइलैंड नेशनल पार्क या फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस प्लेस में, कहां पर इंडिया में, विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज हैविंग अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क और फ्लोटिंग आइलैंड नेशनल पार्क, और विच पर्टिकुलर लेक इज हैविंग द काइंड ऑफ अ फ्लोटिंग आइलैंड्स, फुमडीज कहां का फीचर है, क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। हम सारी चीजें देखेंगे। अभी मैं आपको टॉपिक्स एक तरीके से सिलेबस बता रहा हूं कि सिलेबस में रफली हम कैसे सिलेबस को डिजाइन कर रहे हैं या किस किस तरीके
तरीके की एरिया से नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। अलॉन्ग विद दिस वन क्वेश्चन कम्स नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक क्वेश्चन आता है बायोस्फीयर रिजर्व से। सो वन इज बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी बहुत पॉपुलर है इस एग्जामिनेशन में, बायोस्फीयर रिजर्व। वन क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन इज फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। टाइम कम होता है, सारी इंफॉर्मेशन कवर कर पाना इतने कम टाइम में थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी हम कुछ जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। Along, so World Heritage Sites, Biosphere Reserve, National Park and Wildlife Sanctuaries, very popular areas. The question keep coming in the examination from those areas too. Along with this, remember there is a question from some of the important offices which are occupied by the Prime Minister of India. So PM is in ex officio head of. PM is in ex officio head of. PM is an ex officio head of. ये भी बहुत पॉपुलरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। PM is in ex officio head of, ऐसे लिखा होगा, 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे रहेंगे, वो है। एक क्वेश्चन आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज से। सो वन इज दिस जीके काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। और बाकी फिर हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स में कवर करेंगे, so that will be over here. So some of those type of question mainly which come in the examination we had to focus upon, especially when we are covering the areas from the GK and current affairs. अगर मैं एक एक करके फिर से शॉर्ट में आपको बताऊं, so what are the principal areas which we are talking about when it comes to the prelims examination, this examination. इसमें क्या है, प्लीज डू रिमेंबर इंजीनियरिंग सर्विसेज का पैटर्न थोड़ा अलग है, सिविल सर्विसेज का पैटर्न अलग है, वहां पर हम बहुत अलग तरीके से कवर करते हैं इंफॉर्मेशन। सो इट इज ओनली फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो प्लीज डू रिमेंबर कि थोड़ा सा कवरेज का जो फोकस है वो इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिकॉज इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज नहीं तो आप मेरे कहीं पुराने नोट्स देखेंगे और आपको लगेगा कि हम उसमें बहुत कंप्रीहेंसिवली कवर करते हैं, तो वो हो सकता है शायद इंजीनियरिंग सर्विसेज के हों, या फिर यू सी द नोट्स एंड दे मे बी फ्रॉम द सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू इवन मोर कंप्रीहेंसिवली may have been covered, kind of a very different question comes where the further analysis is needed. So that's why remember the informations need to be covered in examination from altogether examinations perspective. तो इस एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल न्यूज, इश्यूज, अफेयर्स, एनवायरमेंटल न्यूज, पॉलिटी न्यूज, फिर इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, प्रिंसिपली डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, स्पोर्ट्स एंड न्यूज में थोड़ा टेनिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में ओलंपिक्स एक्सेट्रा, जैसे नेशनल न्यूज जो हैं वो इश्यूज जो न्यूज में चल रहे हैं वो हैं। इसके अलावा अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कभी कभी क्या होता है ना, 2 चीजें होती हैं, या तो पॉपुलर अवार्ड है, पॉपुलर अवार्ड और पॉपुलर रेसिपिएंट, दोनों की वजह से क्वेश्चन हो जाता है। पॉपुलर रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट पॉपुलर है तो उसकी वजह से अवार्ड अपने आप पॉपुलर रहता है, और कभी कभी अवार्ड इटसेल्फ इज पॉपुलर। एग्जांपल सपोज अगर हम इस तरीके की अवार्ड्स ऑनर्स की बात करते हैं, लाइक वी टॉक अबाउट भारत रत्न, सो भारत रत्न, और वी टॉक अबाउट नोबेल प्राइज इज दिस। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि ये इस तरीके के क्वेश्चन कई बार कम आते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन किससे आ गए, विटले अवार्ड से आ गए, मिडोरी प्राइज से आ गए, या फिर फॉर दैट मैटर एग्जांपल के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज से क्वेश्चन आ गए, ये वाले जो हैं, या पुलित्जर प्राइज से क्वेश्चन आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ गए। अलॉन्ग विद दिस ये तो है ही पॉपुलर है, जैसे भारत रत्न है, नोबेल प्राइज है, मैग्सेसे अवार्ड है, ये आते हैं एग्जामिनेशन में। मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे व्हिच इज नेम दिस मैग्सेसे अवार्ड व्हिच इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हु डाइड इन एन एयर क्रैश एंड फेमसली आल्सो कॉल्ड एज एशियन नोबेल प्राइज। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे प्राइज हैं, जैसे सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इनसे क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार इनसे थोड़ा ज्यादा आते हैं, इनसे क्योंकि पॉपुलर होते हैं तो कई बार स्किप हो जाते हैं एग्जामिनेशन में। इसके अलावा नेशनल न्यूज अवार्ड्स एंड ऑनर्स के अलावा कमिटी एंड कमीशन, पॉपुलर कमिटी, ये जे ईरानी कमेटी किसके लिए थी, वेंकटचलैया कमीशन किसके लिए था, वेंकटचलैया कमीशन किसके लिए था, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कमिटी एंड कमीशन के लिए। गौबा कमेटी किसके लिए थी, दैट्स वे। इंस्टीट्यूशन एंड देयर प्लेसेस, पर्सन्स एंड न्यूज, प्लेसेस एंड न्यूज, प्लेसेस एंड देयर sobriquets, persons and their sobriquets, and as well as the important international national observances, days, years, etc. national symbols, ये भी बहुत आता है एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पे एक आध क्वेश्चन आता रहता है, सारे एग्जामिनेशन में आता रहता है। पॉपुलेशन सेंसस, गवर्नमेंट स्कीम्स, फर्स्ट अमंग इंडिविजुअल्स, इंपॉर्टेंट लेक, सिटीज, प्लेसेस, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स,
PM is an ex officio head of various organization, constitutional and statutory bodies, and as well as the various miscellaneous areas. ये कुछ areas हैं जो हम examination point of view से cover करने की कोशिश करेंगे. So one by one हम आगे पहुंचेंगे. सबसे पहले जैसे हमने देखा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कुछ एरियाज न्यूज में है, तो पहला हम वहां से देखेंगे जो इंटरनेशनल इश्यूज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में, इससे समझना भी आपकी क्वेश्चन कैसे बनते चले जाते हैं एग्जामिनेशन में, और वो फिर टॉपिक भी कवर हो रहा है हमारा. सो वन रिमेंबर वी टॉक अबाउट इज व्हाट यूनाइटेड नेशन एट द रेट ऑफ 75. इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन की 75 साल कंप्लीट हुए हैं. तो पहला क्वेश्चन वहां से. अब हम जब यहां से बात कर रहे हैं फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन एट द 75 ईयर्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड, नोट्स बनाते जाना है, एस्टैब्लिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम, it was established with effect from October 24, 1945. October 24, 1945, and that is why October 24 is also observed as United Nations Day. Why United Nations Day? Because October 24, 1945, the United Nations was established. This is United Nations. United Nations. United Nations, or also called as United Nations Organization. United Nations Organization. When we say United Nations Organization, so this is also written sometimes as UNO. However, officially it calls itself as a UN, United Nations. But पेपर में आ जाता है तो United Nation Organization भी लिखा रहता है, वो इसी की बात करें UNO. हालांकि ऑफिशियल United Nations established with effect from October 24, 1945. अभी एक लाइन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. यूनाइटेड नेशन के इस बार 75 साल सेलिब्रेट हो रहे हैं ना, बट लेकिन अगर हम इसमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे एक एक करके, तो फिर हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं जीके, फिर हम करंट अफेयर्स नीचे तक आते हैं. इसमें क्या है, एग्जांपल के लिए अगर हम पास्ट में जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज 1914 to 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड वॉर 1. This World War I is also famously called as a Great War. So Great War ये जो normally जो sobriquet के से associate करते हैं वो World War II के साथ नहीं, it is with the World War I. World War I June 1914 if you can recall Archduke French Ferdinand उनकी हत्या हो गई, और फिर वो heir apparent थे of Austria Hungary Empire के, और उसके बाद में फिर हमने देखा है slowly and slowly the problem percolated and eventually it led to in the form of the two groups fighting against each other. अब again मैंने फिर कहा कि अगर कहीं नोट्स देखेंगे तो बहुत इलैबोरेटेड चीजें मिलती हैं, पर याद रखना इस एग्जामिनेशन के फोकस के हिसाब से हम बहुत सिग्निफिकेंट चीजों पे ही काम कर रहे हैं. सो 1914 टू 1918 दिस इज अ वर्ल्ड वॉर 1. अब मेन जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में जो आता है, ज्यादातर क्वेश्चन आया है 1914 टू 1918 एक स्पैन, और दूसरा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, during World War I, main chemical weapons use, main chemical weapons use, main chemical weapons use, main chemical weapons use. मैं पहले ही बता चुका हूं, पर्पस है एग्जामिनेशन की क्वेश्चंस को सॉल्व करना. एग्जामिनेशन में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो. सो व्हाट वाज मेन केमिकल weapons यूज्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1? नंबर 1 एग्जांपल के लिए क्लोरीन को यूज किया, फॉस्जीन को भी यूज किया. सो क्लोरीन वाज यूज्ड, फॉस्जीन वाज यूज्ड, और टीयर गैस वाज यूज्ड, और मे बी रिटन एज ज़ाइलाइल ब्रोमाइड लिखा हो सकता है ऑप्शन में, या फिर राइट दिस ज़ाइलाइल ब्रोमाइड लिखा हो सकता है, या फिर टी स्टॉफ लिखा हो सकता है एग्जामिनेशन में. तो आप याद रखेंगे यस दे वर यूज, और साथ ही साथ वाज यूज वाज मस्टर्ड गैस. दिस इज मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस और सल्फर मस्टर्ड, मस्टर्ड गैस और सल्फर मस्टर्ड. अब प्लीज क्या याद रखना है, इस एग्जामिनेशन में जब पास्ट में क्वेश्चन आया है तो ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन आ जाते हैं. मस्टर्ड गैस ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि, तो याद रखना एग्जामिनेशन के लिए ये भी यूज हुआ, ये भी यूज हुआ, ये भी और ये भी. लेकिन अगर आपको इनमें से एक ही कोई ऑप्शन चूज करना है तो पहला आंसर आपका होगा मस्टर्ड गैस. अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में आ जाए कि ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो अगर ये चारों इनको यूज किया था वर्ल्ड वॉर 1 में, बट रिमेंबर द वन व्हिच इज वेरी पॉपुलर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज अ मस्टर्ड गैस और सल्फर मस्टर्ड दैट वाज प्रिंसिपली यूज्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1. तो एक तो ये हो गया वर्ल्ड वॉर 1 में इंपॉर्टेंट केमिकल वेपन्स दैट वर यूज्ड. नाउ इफ वी एसोसिएट दिस केमिकल वेपन विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट इवेंट, तो हमने देखा रिसेंटली सीरिया वाज इन न्यूज़ फॉर द केमिकल वेपन्स. तो सीरिया
सीरिया, सीरिया किसके लिए न्यूज में था? सीरिया वाज इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू सरीन गैस। तो नाम याद रखेंगे कि सीरिया में जो केमिकल वीपन का एक एलिज्ड अटैक हुआ, उसमें कौन से केमिकल वीपन्स की चर्चा हुई जो सीरिया ने यूज किया था? तो आंसर इज व्हाट? सरीन गैस। यहां पर याद रखेंगे प्रिंसिपली मस्टर्ड गैस या फिर क्लोरीन, फॉस्जीन, टीयर गैस एक्सेट्रा। दैट वाज अ वर्ल्ड वॉर 1। अब जब ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के साथ साथ 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई। सो 1919 दैट कॉन्फ्रेंस वाज, दिस वाज अ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन आता है दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस वाज एन आउटकम because of the efforts in order to bring the peace in the wake of World War I? San Francisco Conference, Washington Conference, Paris Peace Conference. Answer is what? Paris Peace Conference 1919। और इसी Paris Peace Conference यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज थी। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, ट्रीटीज का मतलब संधिज, बहुत सारी संधि हुई, बहुत सारी ट्रीटीज हुई, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज। जो डिफीटेड कंट्रीज थी उनके साथ ट्रीटी साइन की गई। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑस्ट्रिया, एग्जाम्पल के लिए हंगरी, एग्जाम्पल के लिए जर्मनी, एग्जाम्पल के लिए ऑटोमन एम्पायर जिसे बाद में हम बोलते हैं टर्की। तो इनके साथ क्या है, अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए गए। इन इंपॉर्टेंट ट्रीटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई, VERSAILLES, ट्रीटी ऑफ वर्साई। वर्साई एक जगह है फ्रांस में। ज्यादातर ये ट्रीटीज होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, कई बार इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, उनके नाम उन जगहों पर पड़ जाते हैं जहां पर ये एग्रीमेंट एक्सेट्रा साइन होते हैं। सो ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी इज वेरी पॉपुलर ट्रीटी व्हिच वाज साइंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1? आंसर में भी ट्रीटी ऑफ वर्साई। वैसे तो और भी ट्रीटी सी, ट्रीटी ऑफ सेवरेस, ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन, बट प्लीज रिमेंबर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो ट्रीटी जिसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ट्रीटी ऑफ वर्साई ये किसके साथ साइन हुई थी? इट वाज साइंड विद जर्मनी। ये जर्मनी के साथ साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साई। और इस ट्रीटी ऑफ वर्साई और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, इन दोनों का एक आउटकम निकला और इसकी वजह से आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्साई, आफ्टर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, आफ्टर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, आफ्टर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, after Paris Peace Conference and Treaty of Versailles, after Paris Peace Conference and Treaty of Versailles, Treaty of Versailles क्या establish हुआ? There was established एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसे बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। सो क्वेश्चन आता है लीग ऑफ नेशन वाज एन आउटकम ऑफ, आंसर में हो सकता है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस या आंसर में हो सकता है ट्रीटी ऑफ वर्साई। प्रिंसिपली अगर चुनना है वन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ट्रीटी ऑफ वर्साई, और कॉन्फ्रेंस में अगर आता है कॉन्फ्रेंस में होगा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। दिस इज रिमेंबर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड ट्रीटी ऑफ वर्साई दे लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन। सो लीग ऑफ नेशन इज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919 विद इफेक्ट फ्रॉम 2020, विद इफेक्ट फ्रॉम 2020। सो एक लीग ऑफ नेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अब ये लीग ऑफ नेशन हमने देखा जो एक तरीके से प्रेडेसेसर ऑफ यूनाइटेड नेशन था। तो ये क्या हो गया? ये लीग ऑफ नेशन इज अ प्रेडेसेसर टू यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस के पहले यूनाइटेड नेशन की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या था? आंसर इज लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन वाज अ प्रेडेसेसर टू यूनाइटेड नेशन, या यूनाइटेड नेशन ने किसे सक्सीड किया है? सो यूनाइटेड नेशन इज अ सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशन। छोटे से कुछ पॉइंट, लीग ऑफ नेशन वाज हैविंग इट्स हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स जेनेवा में नहीं है, राइट? कुछ हेड ऑफिसेस में से एक हेड ऑफिस जेनेवा में है, बट जब हेडक्वार्टर्स बोलते हैं इसका प्रिंसिपल प्लेस, एंड यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। सो दिस रिमेंबर इज अ हेडक्वार्टर्स जेनेवा। जेनेवा कहां पर है? Geneva is a place in Switzerland. Geneva is a place in Switzerland. Switzerland, a country which is also called as, Switzerland is also called as। अब देखो ये नोट्स के कवर करने का तरीका है, हम पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन के 75 साल पूरे हुए हैं, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं? वो 75 इयर्स के अलावा 24 अक्टूबर के अलावा 1, और उसमें बाकी की इंफॉर्मेशन कवर होती जा रही है। जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्लेसेस इन सोब्रिकी, यहाँ पे आके स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज playground of Europe. So which place is called as playground of Europe? किसे बोलते हैं playground of Europe? Answer is Switzerland is called as a playground of Europe. League of Nations का headquarter कहाँ पर है? Geneva. Geneva is the place of the league headquarters. Geneva is the place where there was a headquarters of League of Nation. ये जो headquarters of League of Nation है, headquarters of League of Nation, this building was called as, this building was called as Palace of Nations. Nations Palace.
इट वाज कॉल्ड एज अ नेशंस पैलेस, पैलेस ऑफ नेशन। ये आ जाता है प्लेसेस इन सोब्रिकी में, या कभी कभी ये जगह के नाम, जैसे एग्जांपल क्या जाता है, क्रेमलिन कहाँ है, व्हाइट हाउस तो सभी जानते हैं, लाइक लोक कल्याण मार्ग, पंचवटी, ये इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसी तरीके से एक क्वेश्चन है प्लेस ऑफ पैलेस ऑफ नेशंस, ए नेशंस पैलेस, नेशन दस पैलेस कहां पर है, सो दैट्स अ प्लेस इज इन जेनेवा। ये हेडक्वार्टर्स था लीग ऑफ नेशन का, उसका नाम था, इसलिए इसको बोलते थे पैलेस ऑफ नेशंस। दिस इज वन रिमेंबर। बट क्या खास बात है इस लीग ऑफ नेशन में, वाज इंडिया वाज अदर कंट्रीज के हिसाब से क्वेश्चन पूछे थे, याद रखना, यूएस डिड नॉट ज्वाइन, यूएस डिड नॉट ज्वाइन, यूएस डिड नॉट ज्वाइन लीग ऑफ नेशन, यूएस ने लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन। हाउएवर रिमेंबर, आइडिया ऑफ लीग ऑफ नेशन, idea of league of nation, idea of league of nation, here mostly the people, if they know both those two information, they find difficulty in solving question. Idea of league of nation was given by, it was given by the former president of US, the then president of US, उस समय के US के president वुड्रो विल्सन। So question, यूनाइटेड नेशंस का आइडिया हम आगे देख रहे हैं, पर लीग ऑफ नेशन का आइडिया किसने दिया, वुड्रो विल्सन। कौन है वुड्रो विल्सन? वुड्रो विल्सन उस समय की द देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन इज आल्सो फेमसली कॉल्ड एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले ही बता चुका हूं, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाकी पढ़ने के लिए अभी हम कुछ में टीपीडीज के थ्रू इंफॉर्मेशन कवर कराऊंगा, जो आप न्यूज में सुन रहे हैं ज्यादा हैं, पर वो एग्जामिनेशन के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स वन एरिया, सो वो भी कवर करेंगे सारी चीजें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल द वन फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन कीप कमिंग, वन इज वुड्रो विल्सन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, क्योंकि दोनों लेके चल रहे हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स बोथ। आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन को बाद में नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज। अब जैसे अगर हम यूएस की बात करें, तो यूएस के 4 प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज मिला है। अब नोबेल प्राइज मिला है, क्यों नोबेल प्राइज की हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जांपल के लिए ये है। दूसरी बात, यूएस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शन न्यूज में है, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शन से क्वेश्चन आ गए, तो प्रेसिडेंट ये भी आ सकता है कि अमंग द फॉलोइंग यूएस प्रेसिडेंट डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज। एग्जांपल के लिए थियोडोर रूजवेल्ट को मिला है, वुड्रो विल्सन को मिला है, जिमी कार्टर को मिला है, और लास्ट हमें याद है बराक ओबामा को मिला था 2009, बराक ओबामा वाज कन्फर्ड विद द नोबेल पीस प्राइज, दैट्स रिमेंबर। बट वुड्रो विल्सन को भी मिला है in 1919 for his effort with respect to the establishment of the League of Nations, the then president of US, in also known as the father of public administration, that is Woodrow Wilson। अब लीग ऑफ नेशन था, और लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करके जो ऑर्गेनाइजेशन आया, तो हमने देखा उसके पहले लीग ऑफ नेशन जब था, इसका पर्पस था वर्ल्ड वॉर 1 जैसी दोबारा घटना ना हो। बट व्हाट वी हैव सीन 1939 to 1945 फिर से वर्ल्ड हैज विटनेस अ वॉर, एंड दैट वाज कॉल्ड एज अ वर्ल्ड वॉर 2। तो फिर से ड्यूरेशन याद रखेंगे 1939 to 1945, एंड व्हाट हैपेंड देयर इन June 1945, so that was June 1945 in San Francisco, this is a place in US। San Francisco conference, एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसको शॉर्ट में बोलते हैं San Francisco conference, and in this San Francisco conference United Nations Charter was adopted। तो यूनाइटेड नेशन को जो स्टैब्लिश किया है, उसे स्टैब्लिश करने में एक तरीके का यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को बोलते हैं यूएन चार्टर। यूएन चार्टर इज अ काइंड ऑफ यूएन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक तरीके से यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ काइंड ऑफ अ यूएन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन चार्टर। इस यूनाइटेड नेशन चार्टर के शुरू में एक प्रियम्बल है, जैसे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरीके से प्रियम्बल है। प्रियम्बल के अलावा इसमें 19 चैप्टर्स हैं, दैट इज 19 चैप्टर्स, प्रियम्बल प्लस 19 चैप्टर्स, और इसके अंदर 111 आर्टिकल्स हैं। इट हैज गॉट द 111 आर्टिकल्स। प्लीज इंफॉर्मेशन लिखते जाना, कवर करते जाना, अपने आप धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन कवर हो जाएंगी। व्हाट इज द पॉइंट ओवर हियर इज, रिमेंबर 26 ऑफ जून 1945, 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन चार्टर को अडॉप्ट किया गया, बट यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली अभी तक एस्टैब्लिश हुआ नहीं। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली कब एस्टैब्लिश हुआ, जब ये चार्टर लागू हुआ। और ये चार्टर कब लागू हुआ, ये लागू हुआ 24 अक्टूबर 1945, 24th of October 1945, दैट इज व्हाई 24th of October
October 1945 is observed as a United Nations Day. तो क्या याद रखेंगे 26th of June 1945 in San Francisco one conference took place, a conference of international conference with respect to the international organization, and in this conference the United Nations Charter was adopted. In this San Francisco conference this United Nations Charter was adopted. It is a kind of a UN constitution. In this San Francisco conference 50 countries participated. 50 countries participated. यहाँ पे 50 countries ने participation किया था. 50 countries participated including India. Including India. Please do remember India was yet to become independent on this particular day, but still India participated there. India was one of those 50 countries including India, and India was represented by, India को किसने represent किया? So India was represented by Ramaswamy Mudaliar. Please remember one name comes in the GK part, Ramaswamy Mudaliar. India को represent करने वाले who was representing India? Who was representing India in the San Francisco conference? That was Ramaswamy Mudaliar. Was India party to the San Francisco conference? Yes. How many countries participated? 50 countries participated. United Nations के 51 countries को founder कहा जाता है. 51 countries are the countries which are considered as a founder. वो founder की उसकी कंडीशंस में लिखा है एक्चुअली. फिर मैंने आपको कहा कि थोड़ा हमारे एग्जामिनेशन में, अभी इस एग्जामिनेशन में डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आते, तो उन सारी इंफॉर्मेशन को मैं स्किप करके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उनको रख रहा हूं. जैसे एग्जांपल के लिए एक वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस हुई थी 42 में, उसमें जिन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, जिसने सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, या उसने यूनाइटेड नेशन चार्टर को रेटिफाई किया है 24 अक्टूबर 1945 से पहले, ऐसी कंट्रीज को बोलते हैं फाउंडर मेंबर. वो 51 बनते हैं. लेकिन एक कंट्री ऐसी है जो फाउंडर मेंबर तो है लेकिन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे. वो सारे 51 की 50 यहां पर भी आए थे, लेकिन एक कंट्री ऐसी है, दैट कंट्री इज पोलैंड. तो क्वेश्चन आता है फाउंडर मेंबर की वो कंट्री जिसने सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो पोलैंड. अभी लिखा रहा हूं, बट प्लीज डू रिमेंबर सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस. इसका मतलब क्वेश्चन आ गया यूनाइटेड नेशन का चार्टर कहां अडॉप्ट किया गया था? ए न्यूयॉर्क, बी वॉशिंगटन डीसी, सी सैन फ्रांसिस्को, डी लंदन. द आंसर इज व्हाट? सैन फ्रांसिस्को. ये सैन फ्रांसिस्को में अडॉप्ट किया गया था. व्हाट इज दैट? दैट इज अ चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ प्रीएम्बल, 19 चैप्टर एंड 111 आर्टिकल. अगर हम इसके हिसाब से देखें, इसकी जो प्रीएम्बल की शुरुआत है, प्रीएम्बल ऑफ यूएन, preamble of UN charter. Preamble of UN charter begins with, this begins with, कैसे स्टार्ट होता है? ये कहता है we the people of United Nations, we the people of United Nations, we the people of United Nations determine. तो एग्जांपल के लिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखें तो उसमें लिखा है we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and then we move on over that. उसी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है we the people of US. तो इसका मतलब है ये जो प्रीएम्बल ऑफ यूएन चार्टर है वो किससे इंस्पायर्ड है? So this is inspired from not Indian constitution. Indian constitution's preamble is also inspired from the same source, and that is the US constitution. एक question, inspired from US constitution preamble. US constitution, it is inspired from US constitution. Indian preamble, Indian constitution, Indian or preamble to Indian constitution. preamble to, preamble का मतलब प्रस्तावना, जो शुरू में लिखी हुई है वो प्रस्तावना. preamble to Indian constitution, preamble to Indian constitution also inspired. ये भी inspired कहां से? It is also inspired from the US Constitution. तो एक छोटा सा पॉइंट, preamble to Indian Constitution inspired from US Constitution. Preamble to United Nations Charter is also inspired from the US Constitution, and it also begins with the same, that is we the people of, वहां पर USA, यहाँ पर India, यहाँ पे लिखा है United Nation. फिर आगे की बात है, that is remember preamble plus 19 chapters and plus 111 articles. 111 articles. अगर हम UN Charter को कंपेयर करें with the Constitution of India, अगर हम इससे कंपेयर करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कंपेयर करते हैं विद द यूएन चार्टर, तो इसमें याद रखना यूएन चार्टर में प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल के बाद में फिर 19 चैप्टर्स हैं, और फिर 19 चैप्टर्स में 111 आर्टिकल्स हैं जो स्पेसिफिक प्रोविजन है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है द वन व्हिच केम इनटू इफेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 26, 1950, 1950 को लागू हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम. जब भी मैं क्लास में WEF लिखूं इसका मतलब है विद इफेक्ट फ्रॉम.
इट मींस कब से लागू हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949, जिसे ऑब्जर्व करते हैं संविधान दिवस। ये संविधान दिवस के तौर पे ऑब्जर्व हो रहा है, संविधान दिवस और कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो दैट्स 26 नवंबर 1949 अडॉप्ट हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 26, 1950। अगर हम इसमें देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ओरिजिनल, डोंट गेट कंफ्यूज, ओरिजिनल, इफ यू सी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, original constitution of India, then it was having at that point in time preamble था इसमें, yes preamble, तो preamble 1, preamble के अलावा फिर हम आगे जाएंगे तो जैसे यहाँ पे चैप्टर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स थे, उनको बोलते हैं 22 पार्ट्स, और जैसे यहाँ पर 111 आर्टिकल्स हैं तो यहाँ पर that was 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स, और उसके अलावा बाद में पीछे कुछ शेड्यूल्स भी लगी हुई थी, प्लस 8 शेड्यूल्स, दैट वाज 8 शेड्यूल। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात करें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, अपडेटेड नहीं, जो आज का नहीं है। बट अब हमने क्या देखा है? मेनी अमेंडमेंट्स हैव टेकन प्लेस आफ्टर अमेंडमेंट्स। अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, आफ्टर अमेंडमेंट्स, एग्जांपल आफ्टर 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, आफ्टर 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, अगर हम इसकी बात करें आफ्टर 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो सिचुएशन चेंज हो गई है। प्रियम्बल है, उसमें भी अमेंडमेंट हो चुका है, वी हैव ऑलरेडी सीन ओवर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पढ़ा होगा आपने शायद, ऑलरेडी क्लास हो गई वाली, इसलिए हम वहां पे नहीं कवर कर रहे हैं। वी हैव गॉट 3 वर्ड्स एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वन वाज सोशलिस्ट नॉट देयर, वन वाज सेक्युलर नॉट देयर, एंड एज वेल एज द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी नहीं, ये 3 वर्ड नहीं थे जिन्हें ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। इसके अलावा ये जो 22 पार्ट हैं, पार्ट्स का नंबर बढ़ के, तो प्रियम्बल तो है, इनके बाद में प्रियम्बल भी है, प्रियम्बल के बाद में फिर यहाँ पर 25 पार्ट्स भी हैं, 25 पार्ट्स, एंड प्लस इसके अलावा अब जो आर्टिकल्स हो गए हैं वो 469 आर्टिकल्स। प्लीज रिमेंबर, नेट वगैरह पे कहीं विजिट करेंगे 448 आर्टिकल्स, सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को उठाओ, कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे कितने आर्टिकल है। आर्टिकल 21A अगर ऐसे लिखा तो नहीं, आर्टिकल 21A। आज भी जो लास्ट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो आर्टिकल नंबर 395 ही है, बट टोटल आर्टिकल देखे जाएं तो टोटल आर्टिकल 469। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इतना भी याद रखोगे तो काफी है कि 450 से ज्यादा है। सो 469 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड along with this 469 आर्टिकल्स एंड प्लस 469 आर्टिकल्स एंड प्लस 8 शेड्यूल की जगह इस समय कितनी शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल। सो 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस हियर, दैट इज अ प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। उसको हम कंपेयर करते हैं अगर यूनाइटेड नेशन के चार्टर से, तो यूएन चार्टर में प्रियम्बल 19 चैप्टर एंड एज वेल एज 111 आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी चैप्टर है, बट चैप्टर पार्ट्स का पार्ट है, इनके अंदर कुछ चैप्टर्स भी हैं, पर हर पार्ट में डिफरेंट चैप्टर हो सकते हैं, इसलिए चैप्टर्स नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अ प्रियम्बल, पार्ट्स 22 पार्ट्स ओरिजिनली, 22 से बढ़ के हो गए 25 पार्ट्स, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल। इनफैक्ट ये वाला भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं, 25 पार्ट्स, तो सबसे लास्ट में जो ऐड हुआ है, लास्ट टू बी एडेड कौन सा पार्ट है? लास्ट टू बी एडेड इज अ पार्ट, दैट इज पार्ट 9B। ये 9B है, पार्ट 9B। ये किससे रिलेटेड है? पार्ट 9B इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 9B इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है पार्ट 9B, एंड पार्ट 9B वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज एडेड टू। एक क्वेश्चन जो बहुत आता है इन एग्जामिनेशन में कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया था? एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ऐसे लिख रहा हूं तो CA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। टोटल कितने पार्ट हो गए हैं? 25। वापस जाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। अगर हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर वाज अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज ऑन in June 1945 when the conference took place in San Francisco. So 26 June 1945, a conference in San Francisco in USA. Here the United Nations Charter was adopted. In this conference, 50 countries participated, including India. And India was represented by Ramaswamy Mudaliar. And United Nations Charter consists of a preamble, 19 chapters and 111 articles. Preamble of UN Charter is a kind of a UN constitution, or UN Charter is a kind of UN constitution, and preamble
preamble of UN Charter is inspired from the preamble of the United States Constitution. उसको हमने कंपेयर किया अगर Constitution of India के साथ में, तो ये हमने देखा Constitution of India which was adopted, enacted and given to themselves by the people of India on 26 November 1949 came into effect on January 26, 1950 और इसके अंदर शुरू में एक preamble 22 पार्ट 395 आर्टिकल्स लेकिन 104 और 8 शेड्यूल 104 Constitution Amendment होने के बाद में अब इसमें प्रियम्बल है 25 पार्ट्स हैं 469 आर्टिकल्स हैं 12 शेड्यूल्स हैं। इस प्रियम्बल में भी एक बार अमेंडमेंट हुआ है और यहां पर हमने देखा सोशलिस्ट सेक्युलर और द इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड थे विच वर एडेड, इनको ऐड किया एंड दीज वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जब हम इसको बोलते हैं तो इसका मतलब ये एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। वन समटाइम्स छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इससे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए इससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने देखा यूनाइटेड नेशन कब किससे बना, यूएन चार्टर से, लेकिन यूनाइटेड नेशन का ये चार्टर इफेक्ट में आया, सो चार्टर बिकेम इफेक्टिव, यूएन चार्टर बिकेम इफेक्टिव, यूएन चार्टर बिकेम इफेक्टिव on October 24, 1945, क्योंकि जितनी कंट्रीज की रेटिफिकेशन की जरूरत थी वो कंडीशन पूरी हुई और इसलिए अक्टूबर 24, 1945 को यूएन चार्टर लागू हुआ और जब ये लागू हुआ तो उसी को हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड। तो उस दिन यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड हो गया। तो ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, दैट इज यूनाइटेड नेशन की 75 साल, 75 का मतलब है अक्टूबर 24, 1945 और उसमें फिर 75 इयर्स का ऑब्जर्वेशन चल रहा है 2020, नंबर 1। और अगर हम बाकी की थोड़ी मिसलिनियस क्वेश्चन देखें तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, न्यूयॉर्क इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएस, न्यूयॉर्क दैट इज इन यूनाइटेड नेशन, न्यूयॉर्क दैट इज अ प्लेस इन यूएस, नंबर 1। नंबर 2, यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वन क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल लैंग्वेजेस, क्या क्या यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हाउ मेनी, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें से 5 शुरू में थी, एक बाद में ऐड की गई, दैट इज अरेबिक, इट वाज एडेड लेटर, इसे बाद में ऐड किया गया था, सो इट वाज एडेड लेटर। 5 + 1, ये जो 5 हैं, दिस इज इंग्लिश, French, Spanish, and Russian and Chinese. English, French, Spanish, Russian, and Chinese. Right? This is English, French, Spanish, Russian, Chinese, and as well as Arabic. These were the 6 official language. These are the 6 official languages of United Nations. शुरू में 5, बाद में जो एक ऐड हुई है दैट इज अरेबिक। आप याद रखेंगे हिंदी इसमें नहीं, हिंदी इज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स दैट इज इन न्यूयॉर्क, एंड यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल लैंग्वेज, दीज आर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज। यूनाइटेड नेशन के बारे में ब्रीफ। दूसरा, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स, वन क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन इज फ्रॉम principal organs of United Nations. One is principal organs of UN, principal organs of United Nation. कितने हैं principal organs of United Nation? 6 principal organ of United Nation. यहाँ पे भी गलती करते हैं एग्जामिनेशन में, पहला ऑप्शन 6 है, अगर 6 नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन 5 है। मैं पहले ही बता चुका हूं, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके लिए कभी कभी सही पढ़ा होना और कभी कभी सही के पास पता होना भी जरूरी है। क्या है? क्योंकि इसमें से एक ऐसा ऑर्गन है जो 1994 से काम नहीं कर रहा है, उसे बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। सो ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नॉट वर्किंग सिंस 1994 बिकॉज द पर्पस फॉर विच it was established
has now been completed and that's why it is dormant, it is inactive, it is not working, but officially इसको खत्म नहीं किया गया है। तो ऑफिशियली देखेंगे तो यूएन के 6 ऑर्गन हैं और अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो 5 काम कर रहे हैं, एक उसमें से काम नहीं कर रहा है। तो पहला, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स? यूएन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। नंबर 1 उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। क्वेश्चन ये भी है, इनमें से कौन सा यूएन का ऑर्गन नहीं है? सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ये वो ऑर्गन जहां पर इंडिया अभी रिसेंटली इलेक्ट हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हमने जो रामास्वामी मुदलियार देखा था अभी, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो पहले प्रेसिडेंट थे, पहले चेयरपर्सन थे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं इकोसोक, इकोसोक दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इट यूजेस मोस्ट ऑफ यूएन फंड्स, मोस्ट ऑफ यूएन फंड्स। यूनाइटेड नेशन की फंड को सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन यूज करता है? तो आंसर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नॉट द जनरल असेंबली, नॉट द सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, जो उस समय कॉलोनीज थी या वो कंट्रीज जो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है इंडिपेंडेंटली गवर्न होने के लिए, उनको सहायता देने के लिए एक ऑर्गन बनाया, उसको ट्रस्टीशिप काउंसिल बोला। और इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का अब ये जो पर्पस था वो पर्पस पूरा हो गया, अब ऐसा कोई एरिया नहीं है, इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है सिंस 1994 नॉट वर्किंग, सिंस 1994 नॉट वर्किंग। अब ये इस समय इनएक्टिव है, इट इज इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है, इट इज इनएक्टिव और डॉर्मेंट, ये डॉर्मेंट है, ये स्लीपिंग स्टेट में है, इसका मतलब है अब ये काम नहीं कर रहा है। बट प्लीज रिमेंबर, ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज नॉट बीन अबॉलिश्ड, अभी इसको अबॉलिश नहीं किया गया है। न्यूज में चलता रहता है कि यूनाइटेड नेशन इज थिंकिंग ऑफ गिविंग न्यू नेम एंड न्यू वर्क टू द ट्रस्टीशिप काउंसिल, क्योंकि इसको हटाने के लिए यूएन के चार्टर को चेंज करना पड़ेगा, वो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो अभी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसके अलावा देयर इज वन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कुलभूषण जाधव को लेकर के न्यूज में रहता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से उसकी बात करें तो आईसीजे, इट इज कॉल्ड एज द आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और फिर साथ में देयर इज सेक्रेटरीट एक तरीके से डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता है यूनाइटेड नेशन को। इट प्रोवाइड्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशन। एंड इंपॉर्टेंटली रिमेंबर, द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट इज कॉल्ड एज अ सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जैसे भी इस समय है एंटोनियो गुटरेस। नाउ एंटोनियो गुटरेस फ्रॉम पोर्टुगल, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल, पहले हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल भी बने हैं, पहली बार कोई ऐसा। अभी हम सेक्रेटरी जनरल पढ़ लेंगे वहां पे। तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो 6 principal organs of United Nations. One is General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, and as well as International Court of Justice, and as well as Secretariat. So 6 principal organs of United Nations. फिर से याद रखेंगे, all 6 are the organs of United Nations. Please remember. लेकिन इन 6 में से all except ICJ. All except ICJ have headquarters in New York. सभी को, अगर सिर्फ ICJ को छोड़े उसके अलावा सभी के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। तो ऑल एक्सेप्ट ICJ हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। ICJ का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? ICJ का हेडक्वार्टर्स हेग में है। इट इज हैविंग इट्स हेडक्वार्टर्स इन हेग, द हेग, THE, The Hague, HAGUE, Hague कहां पर है? Hague is a place in the Netherlands. This is in the Netherlands. ये नीदरलैंड्स में है। Netherlands, Hague, Netherlands, also called as Holland, also called as Holland. इसको बोलते हैं Holland, Netherlands, also called as Holland. यहाँ के जो लोग हैं, people of Netherlands called as Dutch. तो कभी कभी नीदरलैंड को हम डच भी बोल देते हैं, जैसे डच कॉलोनीज, इट मींस कॉलोनी ऑफ नीदरलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड, दैट इज रिमेंबर। और इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? हेडक्वार्टर्स इज इन द हेग। द हेग इज वेरी फेमस, बट हेग इज नॉट द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ नीदरलैंड इज एम्स्टर्डम, बट द हेग इज अ पॉपुलर सिटी इन द नीदरलैंड। ये आईसीजे का हेडक्वार्टर था। एक यूएन का ऑर्गन जिसका हेडक्वार्टर
एक यूएन का ऑर्गन जिसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में नहीं है और वो है आईसीजे व्हिच इज हैविंग हेडक्वार्टर्स इन द हेग. So yes, every organ of United Nations is not having the headquarters in the New York. One is not having. That's one is the ICJ, International Court of Justice. एक तो हो गया ये क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशन के 75 साल पूरे हुए हैं, तो एक उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो यहां से क्वेश्चन हो गया.